afternoon, children. I hope everything is good at your end. So, today I'm going to take up a chapter, Should Wizard Hit Mommy, from one of your textbook vistas. And this is John Updike. First of all, who is John Updike? This is John Updike. John Updike is an American novelist whose full name is John Hoyer Updike, was an American novelist, poet, short story writer, art critic, literary critic. So he was born on 18th March 1932 in a place called Reading, Pennsylvania, United States, and he died on 27 January 2009 at Danvers, Massachusetts, United States. He has got more than two children. So let us not talk about children because we are talking only about John Updike. And yes, the rewards which are important to mention are the Pulitzer Prize for Fiction and National Book Award for Fiction. So to his honors, there are two more awards, but Pulitzer and National Book Award is more important. So a little more about John Updike. This man, John Howard Updike, I've already told you he was born in Reading in USA. And he is a versatile writer, and his over means all the works over another writer as an artist and a writer. Some of his works includes novels, poetries, and short stories, and he's also a literary critic of renown or esteemed level. John Updike has over 50 literary books of a variety of genres to his credit, and including one of the most famous autobiographical, which is important to mention, is The Dogwood Tree, A Boyhood. And he's an internationally known poet, author, who has earned that stardom for his one of the novels wherein he deals with the life of Harry Rabbit. And this novel became very famous, and Angstrom, a star athlete, and his Harry Rabbit novels are some of the series are Rabbit Run, Rabbit Redux, Rabbit is Rich, and Rabbit at Rest. So these are the four novels which had become very famous. And because John Updike's his own childhood was clouded by psoriasis, I'll tell you, was a disease wherein it's a skin disease which is marked by red, scaly, and itchy patches on skin and stammering. So these were the two problems which he himself suffered from in his childhood, and therein he has also inculcated these, or had highlighted these diseases, being even our main character, Father Jack, is suffering from these. So this was an object of ridicule amongst his classmates, but yes, his mother was at his resort, and she had been a great source of encouragement for him. So he owes his literary achievement to the moral support that he received from her. So, coming on to the story now, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. The story is about a young child whose name is Joe and who loves to listen to stories narrated by her father. However, she had begun to ask questions related to the stories now, which her parent found difficult to answer. तो जो शुरू में ये जब ट्रेंड शुरू हुआ स्टोरी सुनाने का, तो जो बहुत छोटी थी, शी वॉज जस्ट 2 years old, बट नाउ शी इज़ ऑलमोस्ट 4 years old, एंड अब उसके लिए मुश्किल उनके पेरेंट्स के लिए इसलिए हो रही कि अब वो सवाल पूछने लगी है. And a particular story about Roger Skunk creates a difference in opinion between Jack and Joe, which raises certain moral question in the story. तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि it is a story within story. कहानी के अंदर कहानी है, और जो अंदर की कहानी है वो रॉजर स्कंक की है, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, जिस तरीके से जॉन अपडाइक ने हाईलाइट की है स्टोरी में. और लास्ट में एक ओपिनियन डिफरेंस हो जाता है जैक और जो के बीच में, और ये मॉरल क्वेश्चन जो है स्टोरी का, वहाँ पर आकर के बात रुक जाती है. तो इससे पहले कि मैं लेसन का जस्ट आपसे डिस्कस करूँ, लेट मी फर्स्ट
only talk about the characters. There are three major characters. One of them is, yes, in fact, Jack, who is the father of the main protagonist, Joe, and this girl, she's in habit of listening to stories from her father. So the father was not innovative, and so Jack was not innovative, and his stories lacked variety and spices. तो चूंकि ये बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं था, तो इसकी कहानी में वो वैरायटी और वो स्पाइस नहीं होता था. He was called upon to narrate stories to his 4-year-old daughter, जो हर शाम या सैटरडे नैप्स के लिए, नैप मतलब शॉर्ट स्लीप के लिए, उसे स्टोरी नरेट करनी पड़ती थी अपनी बेटी को. और ये अब रिपीटेटिव स्टोरीज जो वो सुनाता था, उससे उसकी बेटी जो है, जो अब 4 साल की थी, वो इम्प्रेस नहीं होती थी. तो ये जो डल और रिपीटेशन था, वो ये शो करता है कि लाइफ में काफ़ी बोर्डम क्रिएट करता था ये. तो जैक बहुत ही प्रिकॉशियस चाइल्ड नहीं था. प्रिकॉशियस मतलब होता है बहुत ही एडवांस्ड, हु इज़ इंटेलिजेंट बियॉन्ड ईयर्स. तो इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी इसमें नहीं थी, इसलिए कई बार एज अ चाइल्ड ऑल्सो ही हैड सफर्ड लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशंस इन हिज चाइल्डहुड. I will just mention about one of the diseases that he suffered from in the coming paragraphs. एंड इसलिए स्टोरी में जो स्कंक के साथ हो रहा है, वो पीटिएबल कंडीशन, वो उसको कहीं ना कहीं अपने जो ह्यूमिलिएशंस उसने बचपन में सफ़र की थी, उसको वो दिखाने की कोशिश करता है. In this respect, he also represents the author Updike, who suffered from humiliations owing to two of the diseases that he had. One was psoriasis, which I mentioned when I was giving introduction about author. It's a skin disease which is marked by patches, red, itchy, scaly patches appear on skin, and stammering, हकलाने को कहते हैं. तो जो फादर हैं वो ही हैज़ अ ग्रेट रेवरेंस फॉर हिज मदर, और इन पर्टिकुलर इनफैक्ट सारी मदर्स को वो बहुत ही सुप्रीम कंसिडर करते हैं. और जब उनको ये लगता है एंड में कि स्कंक जो लास्ट में विज़र्ड, स्कंक की माँ जब विज़र्ड को मारेगी और ये चीज़ उसके बदले में वो मदर को मारेगा, तो ये चीज़ उनको ऑब्जेक्शनेबल लगती है और वो बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं जब उसकी डॉटर ये सजेशन देती है कि नहीं, विज़र्ड को का ये रिटेलिएशन ज़रूरी है इस तरीके से. तो एक मॉडर्न मैन की तरह यहाँ पर फादर भी, यानी जैक भी, ही इज़ अ विक्टिम ऑफ इन्यूई. इन्यूई एक ऐसा स्टेट होता है विच इज़ अ स्टेट ऑफ लिस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन. इंसान बहुत ही बेचैन रहता है और उसको कहते हैं इन्यूई. और वो अपनी इस ड्रेरी लाइफ से मैजिक के बारे में और फैंटेसी के बारे में बात करके उनसे निकलना चाहता है. हालांकि डॉक्टर बहुत ही एप्रीहेंसिव है मैजिक के बारे में और वो चीज़ों को कंफर्म करती है, इसलिए स्टोरी में वो कहती भी है कि आर मैजिक स्पेल्स रियल, एंड वो इंसिस्ट करते हैं हाँ दे आर रियल इन द स्टोरीज. तो ये हो गए हमारे जैक. अब जो दूसरी कैरेक्टर है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज जोन. her short name is Jo. She is called as Jo in the story, and जैसे बाकी बच्चे होते हैं आजकल के, वैसी जो भी है, एंड शी इज़ अ पैम्पर्ड चाइल्ड एंड शी इज़ मोर ऑफ अ पापाज डॉटर. दिस हिज 4-year-old चाइल्ड इज़ एन एविड लिसनर ऑफ स्टोरीज़. और उनकी ये जो 4 साल की बच्ची है, ये बहुत ही अच्छी लिसनर है स्टोरीज़ की. और ये भी पता है उसको कि रिपीटेशन ऑफ सेम ओल्ड स्टोरी क्रिएट्स बोर्डम. और वो तो अब जैक ने एक तरीका क्या निकाला, ही हैज़ स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज विद वेरिंग नेम्स. और स्टोरी का जो बेसिक टेल है वो सेम रहता है, लेकिन जो है तो जैसे बाकी के बच्चे हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी थ्रिल्ड एंड शी गेट्स ट्रिकल्ड बाई ट्रिफल्स. और इंटेंसली इन्वॉल्व जब हो जाती है स्टोरी में वो, तो एट टाइम्स वो आंसू गिराने लगती है. तो ये सारी चीज़ें हैं. और ख़ास करके स्कंक का जब पीटिएबल स्टेट देखती है, जब उसकी दयनीय स्थिति देखती है कि किस तरीके से वुडलैंड क्रिएचर्स जो है स्कंक के साथ खेलते नहीं हैं एंड दे आर इग्नोरिंग skunk, तो she moves, she has her teary eyes and her legs are switching tensely. और उसको अपने पापा की ही, उसके पापा के ही वर्ड्स में अगर कहा जाए
तो उसमें उन्होंने चैप्टर में कहा है, अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर clenched in an infantile thrill. तो कुल मिलाकर के शी इज़ एन इंक्विजिटिव चाइल्ड एंड शी डज़ नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. तो इंक्विजिटिव है इसलिए अपना दिमाग भी इस्तेमाल करती है. अब लॉजिक और रीजनिंग की बात करती है. मैजिक स्पेल्स के बारे में थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि उसे डाउट है कि दे आर नॉट रियल इन लाइफ, एंड फुल कॉन्फिडेंस है उसे अपने फादर में, एंड वो कन्विंस्ड भी होती है कुछ चीज़ों में जब उसके फादर ये कहते हैं कि नो दे आर रियल इन स्टोरीज़, जब मैजिक स्पेल के बारे में बताते हैं. हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, वो बहुत इनजस्टिस महसूस करती है जब विज़र्ड को मदर स्कंक मार के जाती हैं, एंड शी वांट्स विज़र्ड टू हिट हर बैक ऑन द हेड, और वो एंड स्टोरी के एंड तक इस चीज़ पर अड़ी रहती है, जिससे कि जैक बहुत अनकन्विंस्ड हैं और वो फादर से आर्ग्यूमेंट करती रहती है. लेकिन फादर का यानी जैक का ये आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, मदर्स आर ऑलवेज राइट. और वो जो है अपीयरेंस में अपनी माँ से बहुत सिमिलर है जो, और पर्टिकुलरली उनकी ब्लू आइज़ का जिक्र किया है जो माँ की तरह है. फिर उसके मैनरिज्म वो माँ की तरह कैरी करती है. तो ऑन द होल जो एक बहुत ही समझदार लड़की है. शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल हु इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग हर ओन डिसीजंस, एंड शी हैज़ गॉट नॉट डिसीजन, I'll say she is capable of independent thinking. So this was all about the character. And yes, one more important characters which I was leaving behind was Claire. That is उनका थोड़ा सा मिनिमल रोल है, बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, यहाँ वहाँ एक आध लाइनें हैं. क्लेयर जो है जैक की वाइफ हैं, और वो जो की मदर हैं. स्टोरी में जब उनको दिखाया गया है तो शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, and this is her third issue, and she is busy in her household chores, and that is all about Claire. So moving on to the gist of the lesson now. Gist says that the chapter captures a very sensitive reaction of a small girl to an important aspect that her father narrates in the story. So she is quite an intelligent child who now has reason and logic to argue with her father. तो इस स्टोरी में जो है वर्ल्ड व्यू है एक छोटे से बच्चे का, जिसमें एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन उठता है कि क्या जो कि मेंटल और साइकोलॉजिकल रिचनेस है एक बच्चे के अंदर. तो जो एक छोटी सी लड़की है 4 साल की, और वो स्टोरी सेशंस में इन्वॉल्व है. उसके फादर उसको कहानियाँ सुनाते हैं. जैक जो कि फादर हैं वो उसे कहानी हर शाम को, स्पेशली सैटरडे को नैप्स के दौरान, नैप्स लेने के लिए, शॉर्ट स्लीप के लिए वो अपनी बेटी को स्टोरी सुनाते हैं. जो है जब वो स्टोरी सुना रहे होते हैं जैक, तो जो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कैरेक्टर्स के साथ और हैपनिंग्स के साथ स्टोरी में. तो अब जो ये स्टोरी रोज जैक सुनाते हैं, इसमें एक एनिमल है जिसको प्रॉब्लम होगी. एक ओल्ड आउल के पास वो जाएगा एडवाइस लेने. वो ओल्ड आउल उसको कहेगा कि नहीं, तुम विज़र्ड के पास जाओ, विजिट विज़र्ड, एंड वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. तो इस स्टोरी में यहाँ खास करके एक स्कंक है जिसका नाम रॉजर रहेगा. ये भी डिसाइडेड रहता है कैरेक्टर में, स्टोरी में कैरेक्टर का नाम रॉजर रहेगा. एंड ही स्मेल्ट वेरी बैड, और ही विजिटेड विज़ार्ड हु चेंज द स्मेल इनटू दैट ऑफ रोजेज़. और जब ये रोजेज़ की स्मेल मास सूंघेंगी या उनको समझ में आएगा, तो शी फील्स वेरी अनहैप्पी अबाउट इट, एंड शी टेक्स हिम बैक टू द विज़ार्ड, जो कि बिल्कुल जो को पसंद नहीं आता है. वो बिल्कुल नहीं चाहती कि माँ दोबारा लेकर के माँ उसका स्मेल चेंज करवाएं. तो शी she doesn't want mother to go to wizard, but माँ मानती कहाँ है, वो जाती हैं. she hits the wizard and ask him to restore the original smell. और वो अपने बेटे को ये भी समझाती हैं कि आपकी खुद की आइडेंटिटी होती है और आपको उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे आप हैं वैसे ही, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके दोस्त ऐसा कैसा करेंगे. तो विज़र्ड जो है वापस से उसकी स्मेल स्कंक की तरह का जैसा स्मेल आती है वैसे चेंज कर देता है. स्टोरी सुनने के बाद रॉजर स्कंक की जो बहुत खुश नहीं है, शी इज़ अनहैप्पी विद द एंडिंग, एंड वो चाहती है अपने फादर को कि वो एंडिंग चेंज करें. उसका ये मानना है कि विज़र्ड ने माँ को मारा है, वो माँ को मारे और वापस से मारे, और रॉजर की फिर रोजेज़ वाली स्मेल हो जाए. लेकिन फादर इस बात पे, यानी जैक इस बात पे बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं.
उनका ये मानना है कि ये मॉरली करेक्ट नहीं है. तो this raises a very difficult moral question whether parents possess the right to impose their will on their children or not. तो ये तो था बच्चों स्टोरी का जिस्ट. और अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. सो इफ़ एट ऑल एनी डाउट इज़ देयर, प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स and do like, share my video with your friends. Bye bye. Yeah.